السلام علیکم رحمتہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ، نور الدین جنگی رحمتہ اللہ علیہ، امیر البحر، سعدی بن سعد، رینالٹ اور سلیبی ملاح اور تمام فوج۔ رات کا پہلا پہر تھا جب اگلی صف کے جنگی جہاز ساحل کی طرف بڑھے اور کسی دشواری کے بغیر ساحل پر لنگر انداز ہو گئے۔ پچھلی صف کے جہاز ان کے قریب عقب میں آئے اور لنگر ڈال دیے۔ تیسری صف بھی قریب آ گئی۔ فوج اتارنے کا انتظام غالباً یہ تھا کہ ہر ایک جہاز کو ساحل پر نہیں آنا تھا، بلکہ تمام جہازوں کو ساتھ ملا کر ان میں سے فوج کو گزر کر اترنا تھا۔ سکندریہ پر خاموشی سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اطلاع کے مطابق وہاں چونکہ فوج نہیں تھی، اس لیے قبضہ مشکل نہ تھا۔ اگلے جہازوں سے جو فوج اتری اسے سکندریہ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور سپاہیوں کو بتایا گیا کہ شہر ان کا اپنا ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ سپاہی دوڑ پڑے، انہیں شہر کو لوٹنا تھا اور ان کی نظر عورتوں پر بھی تھی۔ جو ہی سپاہیوں کا یہ ہجوم شہر کے قریب آیا، شہر کے باہر دائیں اور بائیں شعلے اٹھے جن سے رات روشن ہو گئی۔ یہ گھاس، لکڑیوں اور کپڑوں کے انبار تھے جن پر تیل ڈالا گیا تھا، ان سے روشنی کا کام لینا تھا۔ شہر کی گلیوں میں بھی مشالیں جل اٹھی اور مکانوں کی چھتوں سے تیروں کا مینا برسنے لگا۔ سلیبی پیچھے کو بھاگے تو دائیں اور بائیں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ زخمیوں کی چیخ و پکار سے رات لرزنے لگی۔ ان سلیبیوں کی تعداد کم و بیش 2000 تھی، ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ پیچھے گیا ہوگا۔ سلیبی فوج جو ابھی جہازوں میں تھی اسے آگے آنے کا حکم ملا۔ جہازوں میں سے سلیبیوں کی منجنیقیں آتشیں گولے پھینکنے لگی اور دور مار تیر بھی آنے لگے۔ سب سے پیچھے والے 2-3 جنگی جہازوں میں سے شعلے اٹھے۔ سلیبی کپتانوں نے پیچھے دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر سے آگ کے گولے اٹھتے ہیں اور ان کے جہازوں میں آ کر گرتے ہیں۔ سلیبیوں نے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر جہازوں کو ہجوم کی صورت میں اکٹھا کر دیا تھا اور وہ سلطان ایوبی کے فندے میں آ گئے تھے۔ دن کے وقت اگلے جہاز کو جو ماہی گیر ملے تھے وہ علی بن سفیان کے محکمے کے آدمی تھے۔ یہ قدرت سی بات تھی کہ سمندر میں ماہی گیر ملے تو سلیبی کپتان نے ان سے معلومات حاصل کی۔ ماہی گیروں نے غلط معلومات دی، انہوں نے صرف یہ بات ٹھیک بتائی تھی کہ مصری بیڑا یہاں سے دور ہے۔ وہ واقعی دور تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے امیر البحر کو بتا دیا تھا کہ وہ سمندر پر نظر رکھے، کسی بھی وقت حملہ آ جائے گا۔ امیر البحر نے دیکھ بھال کا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ سلیبی بیڑا سمندر کے وسط تک آ گیا ہے۔ چنانچہ امیر البحر اپنے چند ایک جنگی جہاز جن میں آتشی گولے پھینکنے والی منجنیقیں تھی ایک طرف دور لے گیا تھا۔ اس نے بادبان بھی اتار لیے تھے اور مستول بھی، تاکہ دور سے جہاز نظر نہ آ سکے۔ ان کی بجائے اس نے ایک ایک چپو پر 2-2 آدمی لگا دیے تاکہ رفتار تیز رہے۔ شام کے بعد جب سلیبی بیڑا ساحل کے قریب گیا تو امیر البحر نے مستول بھی چڑھا دیے اور بادبان بھی، اور چپوں کی رفتار بھی تیز رکھی، اور اس طرح وہ سلیبی بیڑے کے عقب میں عین اس وقت پہنچ گیا جب سلیبیوں نے اپنے جہاز ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے تھے۔ سلیبیوں کو دوسرا دھوکہ ان ماہی گیروں نے دیا تھا جو سکندریہ سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے سلیبی کمانڈر سے کہا تھا کہ وہ ان کے جاسوس ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سکندریہ میں کوئی فوج نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ شہر کے ان مکانوں میں جو سمندر کی طرف تھے وہاں صرف فوج تھی۔ شہریوں کا محفوظ حصے میں بھیج دیا گیا تھا، کئی اچھی جگہ بھیج دیا گیا تھا جہاں پر ان پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ سلطان ایوبی کا امیر بہت تھوڑے جہاز لے کر گیا تھا۔ انہوں نے نقصان تو بہت کیا، لیکن دشمن کے کئی ایک جہاز بچ کر نکل گئے۔ دوسروں نے مقابلہ کیا۔ جلتے جہازوں نے رات کو دن بنا دیا تھا۔ اس روشنی میں سلطان ایوبی کے جہاز بھی نظر آنے لگے تھے۔
उनमें से एक जहाज सलेबियों की मंजनीखों की जद में आ गया। अमीरुल बहार ने अपने जहाज़ों को पीछे हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि दुश्मन जहाज़ों की अफराद की सहूलत से फायदा उठाते हुए घेरा डालने की कोशिश कर रहे थे। सिकंदरिया में सुल्तान अय्यूबी के जाबाजों ने जोश में आकर साहिल पर हल्ला बोल दिया और जहाज़ों पर आतिशी तीर फेंकने लगे। ये जाबाज मिस्र की फौज के उस तीसरे हिस्से के थे जिसे सुल्तान अय्यूबी ने अपने हाथ में रखा था। उन्हें गैर फौजी लिबास में सिकंदरिया में मकानों में मोर्चा बंद किया गया था और निहायत खामोशी से शहरियों की दूसरे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था। सुल्तान अय्यूबी अक्ल और धोखे की जंगी लड़ रहे थे। इस तरह की जंग वो अक्सर लड़ा करते थे और कम से कम ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अभी खासी नफरी अपनी शेर कमान रिजर्व में रखा था। रात भर ये जंग जारी रही। समंदर में कई जहाज चल रहे थे। वहां कयामत का मंजर बना हुआ था। सलेबी बेड़ा चूंकि ज्यादा था, बल्कि सुल्तान अय्यूबी के जहाजों की निस्बत बहुत ही ज्यादा, इसलिए सलेबी जहाज तबाही से निकलकर मुसलमानों के जहाजों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। सूरत घेरे वाली बन गई थी। रात को पता नहीं चलता था कि अपने जहाजों की कैफियत क्या है। सुल्तान अय्यूबी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने उन जहाजों को जिन्हें उन्होंने महफूज के तौर पर रखा हुआ था, हुक्म भेज दिया कि सलेबी जहाजों को दूर का चक्कर काट कर उलझाएं। रात के पिछले पहर बाकी जहाज भी मुआरके में शरीक हुए। इसमें बहादुरी तो उन मल्लाहों की थी जो छोटी छोटी कश्तियों में अपने जहाजों को तीरे आतिशगीर मादा और गोले पहुंचा रहे थे। अपने जहाजों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। सुबह तुलू हो रही थी जब अमीरुल बहार एक कश्ती में साहिल पर आया। उसके साथ चंद एक बहरी सिपाही थे। अमीरुल बहार के कपड़े खून से लाल थे और उसकी एक टांग झुलसी हुई थी। उसका जहाज नजरे आतिश हो गया था और वो चंद एक जवानों को समंदर से निकाल लाया था। उसने सुल्तान अय्यूबी को बड़ी इजलत में मुआरके की सूरत हाल बताई, जो मुख्तसर ये थी कि उसके आधे जहाज तबाह हो चुके थे, लेकिन सलेबियों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका था कि वो ज्यादा देर लड़ने के काबिल नहीं थे। सुल्तान अय्यूबी ने उसे बताया कि बाकी जहाजों को भी भेज दिया गया है। यह इक़दाम अमीरुल बहर की ख्वाहिश और जरूरत के ऐन मुताबिक था। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा, सलेबियों को सबसे ज्यादा नुकसान वो बोझ दे रहे हैं जो उन्होंने जहाजों में लाद रखा है। रसद के अलावा उनके जहाजों में फौज भी है और बाज जहाजों में घोड़े हैं। इस बोझ की वजह से उनके जहाज रफ्तार में नहीं आते और घूमने में देर लगाते हैं। मेरे जहाज खाली हैं। अमीरुल बहार इतना ज्यादा जख्मी थे कि उसका सर डोल रहा था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने तबीब और जर्राह को बुलाया, मगर अमीरुल बहार ने परवाह न की। सुल्तान अय्यूबी का हेडक्वार्टर साहिल के चट्टानी इलाके में था। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़े थे। सूरज की पहली किरणों ने समुंदर और साहिल को जो मंजर दिखाया वो बहुत हैबतनाक था। जहां तक नजर जाती थी, समंदर में जहाज मस्त सांडों की तरह समंदर को चीर रहे थे। बहुत से जहाज जल रहे थे। बाज मस्तूल टूट जाने और बादबान बेकार हो जाने से एक ही जगह खड़े हिचकोले खा रहे थे। समंदर में बहुत से इंसान तैरते नजर आ रहे थे और मौजें लाशों को साहिल पर पटक रही थी। अपने जहाजों का कुछ पता नहीं चलता था। दूर मगरिब की तरफ समंदर से मस्तूलों की बालाई हिस्से उभरे, फिर बादबान नजर आए। जहाज एक सफ में एक दूसरे से दूर दूर मुआरके की तरफ बढ़े आ रहे थे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुम्हारे जहाज आ रहे हैं। उसने इधर देखा, वहां अमीरुल बहार नहीं था। अमीरुल बहार अपने जहाजों को आता देखकर सुल्तान को बताए बगैर चट्टान से उतर गया था। सुल्तान अय्यूबी को वो उस वक्त नजर आया जब वो एक कश्ती में बैठ चुका था और कश्ती का बादबान खुल चुका था। ये 10 चप्पुओं की कश्ती थी। सुल्तान अय्यूबी ने चिल्लाकर उसे पुकारा, सादी तुम वापिस आ जाओ, मैंने तुम्हारी जगह अबू फरमिया को भेज दिया है। अमीरुल बहार दूर निकल गया था। उसने बुलंद आवाज से कहा, ये मेरी जंग है, खुदा हाफिज। और उसकी कश्ती दूर ही दूर हटती गई, फिर नजरों से ओझल हो गई। कासिद ने सुल्तान अय्यूबी को इत्तला दी कि सिकंदरिया से शुमाली मशरिक की तरफ 3 मील दूर सलेबियों की कुछ फौज उतर आई है और वहां खूरेज मुआरका लड़ा जा रहा है।
सुल्तान अय्यूबी ने वहां जाने के बजाय कुछ अहकाम जारी कर दिए और समुद्री जंग को देखते रहे। और उन्होंने ये मंजर भी देखा कि सलेबियों का एक जहाज साहिल के जरा करीब आ गया था। सुल्तान अय्यूबी के बेड़े का एक जहाज उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। सलेबियों ने तीरों की बौछारें मारी, लेकिन मुसलमान मल्लाहों ने परवाह न की। वो अपने जहाज को सलेबी जहाज के इतना करीब ले आए कि कूद कर उसमें चले गए और दस्त बदस्त लड़कर जहाज पर कब्जा कर लिया। इतना लड़ाई किए, खूनी मार का हुआ, लेकिन उसको कब्जा कर लिए। मगर ये मुहारका इतना सहल न था जैसा बयान किया गया है। मुसलमान बहरिया की सरफरोशों ने खून और जान की बेदरेग कुर्बानी दी। वो 3-3, 4-4 जहाजों के घेरे में लड़े, दुश्मन के जहाजों में कूद कूद कर लड़े, तीरों से छलनी हुए, मगर इस तरह मुहारके में से निकलने की न सोची जिस तरह सलेबी अपने जहाज निकालने की कोशिश कर रहे थे। सलेबियों की कमर रात को ही टूट गई थी। उनके कमांडर सलेब का हलफ पूरा कर रहे थे और उन्हें सुबह तक ये उम्मीद लड़ाती रही थी कि वो सुल्तान अय्यूबी की खलील सी बहरी कुव्वत पर काबू पा लेंगे। लेकिन अगले दिन के पिछले पहर तक उनकी कैफियत इतनी बिगड़ चुकी थी कि जहाज बिखर कर उधर को ही जा रहे थे जिधर से आए थे। वो अपनी ज्यादातर कुव्वत मुसलमानों के हाथों तबाह कर गए थे और उनकी जो थोड़ी सी फौज साहिल पर उतरी थी वो सिकंदरिया से 3-4 मील दूर शुमाल मशरिक में कुछ कट गई थी। बाकी ने हथियार डाल दिए थे। सुल्तान अय्यूबी की फौज का दूसरा हिस्सा भी जंग में शरीक ही नहीं हुआ था। सुल्तान अय्यूबी के पास कासिद आ रहे थे, जा रहे थे, और जब उसे यकीन हो गया कि सलेबी नाकाम हो गए हैं तो उन्होंने फौज के दूसरे हिस्से को एक और मुआज दे दिया। इमरान की इत्तला के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की तरफ से भी सलेबी फौज को आना था। उसके लिए फौरन नूरुद्दीन जंगी घात में थे। ताम पेश बंदी के तौर पर सुल्तान अय्यूबी ने दफा मजबूत कर लिया। तीसरे हिस्से को जो उसने अपनी जेर कमान रिजर्व में रखा हुआ था उन सलेबियों को पकड़ने पर लगा दिया जो समुंदर से निकल रहे थे। सूरज की आखिरी किरणों ने सुल्तान अय्यूबी को ये मंजर दिखाया। सलेबियों ने वही जहाज नजर आ रहे थे जो जल चुके थे और अभी डूबे नहीं थे, या वो जिन्हें पकड़ लिया गया था, या उन जहाजों के बादबान नजर आ रहे थे जो वापस जाते हुए दूर ही दूर हटते जा रहे थे। उनकी अपनी बहरिया की जहाज जो बच गए थे साहिल की तरफ आ रहे थे। देखने वालों ने अंदाजा लगाया कि सुल्तान अय्यूबी की आधी बहरिया मिस्र पर कुर्बान हो गई थी। कश्तियां साहिल पर आ रही थी, उनमें अपने बहरे सिपाही आते थे जो जख्मी थे या समंदर से निकाले जा रहे थे। उनके जहाज तबाह हो गए थे। एक कश्ती उस चट्टान के करीब आके साहिल से लगी जिस पर सुल्तान अय्यूबी खड़े थे। उनमें किसी की लाश थी। सुल्तान अय्यूबी ने बुलंद आवाज से पूछा, ये किसकी लाश है? अमीरुल बहर सादी बिन साद की, एक मल्लाह ने जवाब दिया। सुल्तान अय्यूबी दौड़कर नीचे उतरे, लाश से कपड़ा हटाया। उसके अमीरुल बहर की लाश खून से लाल हो चुकी थी। मल्लाहों ने बताया कि अमीरुल बहर ने एक जहाज तक पहुंचकर बहरिया की कमान ले ली थी और जंग लड़ाते रहे। उन्होंने इस जहाज पर अपनी कमान का झंडा चढ़ा दिया था। गालिबन यही वजह थी कि सलेबियों के 4 जहाजों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से 2 तबाह हुए और अमीरुल बहर का जहाज भी तबाह हो गया। उस वक्त तक मुआरका खत्म हो चुका था। सुल्तान अय्यूबी ने अमीरुल बहर की लाश का हाथ चूमा और कहा, तुम समंदर के फाते हो, मैं कुछ भी नहीं। उन्होंने जहां ये हुक्म दिया कि दुश्मन के जो जहाज पीछे रह गए हैं उनसे सामान निकाला जाए, वहां जज्बाती लहजे में कहा, तमाम कश्तियां समंदर में डाल दो और किसी शहीद की लाश समंदर में ना रहने दो। उन्हें यही दफन करना जहां बहरे रूम की हवाएं उनके कब्रों को ठंडी रखे। बहरी शहीदों की तादाद कम नहीं थी। बैतुल मुक़द्दस से सलेबियों की फौज कूच कर चुकी थी और आधा रास्ता तय कराई थी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि उनके बहरिया अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। उसके क़ल्ब में सलेबियों का मशहूर जंगजू हुक्मरान रेजनाल्ड था। इस फौज की भी 3 हिस्से थे, एक आगे था, दूसरा कुछ दूर पीछे दरमियान में और तीसरा बहुत दाएं को हट कर आ रहा था। उसके मुतहदा कमान पर रेजनाल्ड के पास थी और उसे ये तवक्का थी कि वो सुल्तान अय्यूबी को बेखबरी में डालेगा।
तस्वुरों में उसे काहिरा नजर आ रहा था। घोड़ा गाड़ियों के काफिले रसद भी साथ ला रहे थे। सिकंदरिया से बहुत दूर शुमाल मशरिक में एक वसी खित्ता रेत और मिट्टी के टीलों और नसीब व फिराज का हुआ करता था। 8 सदियों ने इस खित्ते को अब वैसा नहीं रहने दिया। उसके करीब बाकी इलाका सहरा था और उस सहरा में पानी भी था। रेजिनाल्ड ने एक पड़ाव वहां किया। उसकी फौज का अगला हिस्सा आगे निकल गया था। दाएं तरफ वाला हिस्सा दूर था। आधी रात का वक्त होगा। रेजिनाल्ड के कैंप में कयामत बपा हो गई। उसके कुछ भी पल्ले न पड़ा कि यह कयामत आसमान से टूटी है या उसकी अपनी फौज ने बगावत कर दी है। उसके वहम गुमान में भी न था कि वो नूरुद्दीन जंगी के घात में आ गया है। जंगी ने कई दिनों से अपनी फौज को टीलों और नसीब व फिराज के इस इलाके में लाके बिठा रखा था। उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पानी करीब है, इसलिए सलेबी यहाँ पड़ाव करेंगे। सलेबी फौज का अगला हिस्सा आगे निकल गया तो जंगी ने कमांडरों को मायूसी हुई। उन्होंने ये हुक्म दिया गया था कि रात को पड़ाव पर हमला करना है। वहां पड़ाव ना हुआ। बहुत देर बाद उन्हें दूर से गर्द के बादल नजर आए तो वो समझ गए कि आंधी आ रही है। सहराई आंधी बड़ी खौफनाक हुआ करती है, लेकिन ये आंधी नहीं, सलेबी फौज का दरमियानी हिस्सा था जो उसी जगह आकर रुक गया जहां नूरुद्दीन जंगी को तवक्का थी। सलेबियों ने खेमे न लगाए क्योंकि उन्हें सुबह कूच करना था। जानवरों को अलग बांध दिया गया और फिर सूरज डूब गया। आधी रात को नूरुद्दीन जंगी के दस्ते जो घात में थे बाहर आए। ये सब सवार थे। उन्होंने पहले तो अंधेरे में तीरों का मीना बरसाया और जब सोए हुए सिपाहियों में भगदड़ मची तो सवारों ने घोड़े सर पर दौड़ा दिए। वो अंधाधुंध बर्शियां और तलवारें चलाते गए और आगे निकल गए। सलेबी संभलने न पाए थे कि सवारों ने फिर हल्ला बोल दिया। सलेबियों के बंधे हुए घोड़ों की रस्सियां खोल दी गई। ये सब भाग उठे। रेजिनाल्ड वहां से भाग गया और दाएं हिस्से वाली फौज में जा पहुंचा। यह हिस्सा कहीं दूर पड़ाव किए हुए था। नूरुद्दीन जंगी उसी तरफ थे। इस सारी फौज की रसद पीछे आ रही थी। नूरुद्दीन जंगी ने उसके लिए अलग दस्ते मुकर्रर कर रखे थे। उन्होंने सुबह तक रसद पर कब्जा कर लिया। दाएं वाला हिस्सा रात को होशियार हो गया था। रेजिनाल्ड उसे अपने हिस्से की तरफ लाने लगा क्योंकि वो उसी जगह को मैदान जंग समझता था। सुबह के धुंधलके में ये फौज चल पड़ी। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अक़ब से उसके पहलू पर हमला कर दिया। उसके बाद इस फौज को मालूम ही न हो सका कि उस पर किस तरफ से हमले हो रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी की तरफ नूरुद्दीन जंगी भी जमकर नहीं लड़ा करते थे। छोटे छोटे दस्तों से हमले करा के सलेबियों को बिखेर